Give praises to God. परमेश्वर ने हमें दिया हुए इस सम्मेलन के लिए, इस सुसमाचार के सम्मेलन के लिए आइए एक बार फिर शुक्रगुजारी के हृदय के साथ आइए हम उसकी तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord, praise the, praise the, praise the. Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. This evening for a meditation, let us turn a scripture to the Gospel of Matthew. आज शाम के ध्यान के लिए आइए हमारे धर्मशास्त्रों को मत्ती रचित सुसमाचार की ओर मोड़ेंगे। Gospel of Matthew chapter 4 verses 15 to 17. मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय का उसका 17 वचन पढ़ेंगे। Yeah. Please read this verse. कृपया करके उस वचन को पढ़ें। Gospel of Matthew chapter 4 verses 15 to 17. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय का 15 से लेकर 17 वचन। कि जबूलून और नप्ताली के देश झील के मार्ग से यरदन के पार अन्य जातियों का गलील, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। उस समय से यीशु प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। The land of Zebulun and the land of Naphtali, by the way of the sea beyond Jordan, Galilee of the Gentiles, the people which sat in darkness saw great light, and to them which sat in the region and shadow of death, light is sprung up. From that time Jesus began to preach and to say, Repent, for the kingdom of heaven is at hand. The people which sat in the darkness saw great light. जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्हें एक बड़ा ज्योति देखा। And to them which sat in the region and the shadow of death, light is sprung up. और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। From that day Jesus began to preach. उस समय से यीशु प्रचार करना आरंभ किया। This evening Jesus will preach. आज शाम के समय यीशु मसीह प्रचार करेगा। Lord should speak with us. Hallelujah. परमेश्वर हमसे बातें करना All चाहिए। those who are sitting in darkness, the light Lord should shine upon us. जितने लोग अंधकार के बीच में बैठे हैं उनके ऊपर ये ज्योति चमकना चाहिए। He should reveal His counsels unto us. परमेश्वर अपनी सलाह हमें प्रकट करना चाहिए। His word, He should deliver His people from darkness. उसके वचन के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों को उनके अंधकार से छुड़ाना चाहिए। Light is to shine among us. वो ज्योति के समान हमारे बीच में चमकना As the चाहिए। light is to shine in our life. वो ज्योति होकर हमारे जीवन में चमकना चाहिए। As the light, Lord should move in our midst. आज शाम के समय ज्योति होकर परमेश्वर हमारे बीच में चलते फिरते Let us रहना। all pray for a while that the God will speak with us this evening. आइए थोड़ी देर हम प्रार्थना करेंगे। आज शाम के समय प्रभु हमसे बातें करना चाहिए। Hallelujah, praise the Lord. Yes, the Lord, loving Jesus, hallelujah. Yes, the Lord, we want to hear the word of the Lord. We want to voice the Lord. Speak to us, the Lord. Yes, the Lord, deliver us from every darkness of the mind. In Jesus' name we ask the Father. आमीन। Yeah, praise for the holy name of God. परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। Yeah, in 17th verse we have read that from that time Jesus began to preach and to say, Repent, for the kingdom of heaven is at hand. 17 वचन में हमने इस रीति से पढ़ा, उस समय से यीशु प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। This was the first preaching of our Lord Jesus Christ. हमारे प्रभु यीशु मसीह का ये पहला प्रचार था। Our Jesus, when he began his ministry, this was the first message. जब हमारे यीशु मसीह ने अपनी सेवा को आरंभ किया तो ये उनका पहला संदेश था। Before preaching, before he started this preaching, he performed a miracle in the land of Cana. इस संदेश को आरंभ करने से पहले उस कनान देश के बीच में उसने एक बड़ा अद्भुत काम, आश्चर्य काम किया। Praise for the holy name of God. परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। So before going into the text, I want to go into the context of this. इस संदेश में जाने से पहले मैं इसका शीर्ष को आपको बताना चाहूंगा। Yeah, praise for the holy name of God. परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। Beloved child of God. परमेश्वर के प्रिय बच्चों, When Jesus started to preach, जब यीशु मसीह ने प्रचार आरंभ किया, when did Jesus started to preach? कब यीशु मसीह ने प्रचार करना आरंभ किया? When John the Baptist was put into prison by Herod. जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला हेरोदेस के द्वारा बंदी गृह में डाला गया। He was put in prison. वो उसे बंदी गृह में डाला गया। Beloved child of God, the voice of God was stopped.
परमेश्वर के प्यारे बच्चों, जो परमेश्वर की आवाज थी उसे रोक दी गया। John was the voice of God. यूहन्ना परमेश्वर का शब्द या उसकी John आवाज the थी। Baptist's voice was put to silence. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाली की आवाज को दबा दिया गया। When his voice was stopped, Jesus raised up his voice to preach. जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की आवाज को दबाया या रोका गया, तब यीशु मसीह ने प्रचार करना आरंभ किया। Yes, beloved child of God. हाँ परमेश्वर के प्यारे बच्चों, Against the truth of the kingdom. उस राज्य की सच्चाई के बारे में, Against the truth of repentance. उस पश्चाताप के संदेश के विरोध Against में, the truth of the living God. परमेश्वर की उस सच्चाई के विरोध में Many voices raised against it. बहुत सी आवाजें उठी। Yeah, many kings rose up against this voice. बहुत से राजा उस शब्द के विरोध में उठे। Many leaders they rose up against this voice. बहुत से नेता उसके विरोध में उठे। Many emperors they raised up against this voice. बहुत से शासक उसके विरोध में उठे। Many authorities they raised up against this voice. बहुत से अधिकारी उस आवाज के विरोध में उठे। Yes, when the John the Baptist voice was stopped. जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की आवाज को दबाया When गया, his voice was put to silence. जब उसकी आवाज को शांत कर दिया गया, Jesus raised up his voice. यीशु मसीह ने अपनी आवाज को उठाया। Jesus started to preach. यीशु मसीह ने प्रचार करना आरंभ Yeah, किया। praise be to the holy name of God. परमेश्वर के पवित्र नाम की Yes, तारीफ हो। beloved child of God. हाँ परमेश्वर के प्यारे When बच्चों, Jesus started to preach, जब यीशु मसीह ने प्रचार करना आरंभ yes, his किया, own people raised against him. उसके अपने लोग उसके विरोध में उठ खड़े हुए। Then after the death of Jesus, his disciples started to preach. यीशु मसीह के मृत्यु के पश्चात उसके चेलों ने उसका इस प्रचार को आरंभ किया। All those who raised up against this voice, they all are turned into dust. जितने लोग इस सच्चाई के विरोध में, उस आवाज के विरोध में उठे, वो मिट्टी में मिल गए। But still this voice is going on. लेकिन अभी भी वो आवाज गूंज रही है। This word is going on proclaiming. उसका वचन अभी भी है और उसके वचन को हम घोषणा करते हैं। This word is preached all over the world. इस संसार, पूरे संसार में उसका वचन प्रचार किया जा रहा Because है, this voice is a living voice. क्योंकि ये आवाज जीवित आवाज है। This word is a living word. ये वचन जीवित वचन है, There is a power in this word. क्योंकि इस वचन में सामर्थ है। There is a deliverance in this word. इस वचन में एक छुटकारा है। There is redemption in this word. इस वचन में एक छुटकारा है। Yeah, praise be to the holy name of God. परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। Beloved child of God. परमेश्वर के प्यारे बच्चों, When Jesus started to preach, जब यीशु मसीह ने प्रचार करना he आरंभ किया, says, repent. उसने कहा मन फिराओ, Repent, for the kingdom of heaven is at hand. मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। Yes, beloved child of God. हाँ परमेश्वर के प्यारे बच्चों, Unto whom Jesus is preaching this gospel, ये सुसमाचार पर यीशु मसीह किनको प्रचार कर रहे हैं? the people those who were in darkness, वो लोग जो अंधकार के बीच में थे, and the people those who were sitting in darkness. जो लोग अंधकार के बीच में बैठे हुए थे। Yeah, beloved child of God. हाँ परमेश्वर के प्यारे बच्चों, In 15th verse we read that हमने 15 वचन में इस रीति से पढ़ा, the land of Zebulun and the land of Naphtali by the way of the sea beyond Jordan, Galilee of the Gentiles. कि जबूलून और नप्ताली के देश, झील के मार्ग से यरदन के पार, अन्य जातियों का गलील। So the Galilee of Gentiles. जो अन्य जातियों का गलील है। So in this verse we can see two groups of people. इस वचन में हम दो प्रकार के झुंड के लोगों को देखते हैं। They are in this land. There were the people, the tribe of Zebulun and Naphtali was there. उस देश में हम यबूलून के और नप्ताली के जाति के लोगों को देखते थे। They are the sons of Jacob. ये लोग याकूब के पुत्र हैं। Praise be to the holy name of God. परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। And in the same word we see there are Gentiles also in this और Galilee. उसी वचन में हम ये भी देखते हैं कि उस देश में अन्य जाति भी थे। Praise be to the holy name of God. परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। Beloved child of God. परमेश्वर के प्यारे One बच्चों, Jewish historian named Josephus he says, एक यहूदी इतिहासकार जिसका नाम जोसेफुस है, in the days of Jesus in this Galilee there was 204 villages. यीशु मसीह के समय में गलील में 204 गांव थे। And the population was nearly 3 million. और वहां की जो जनसंख्या थी वो करीबन 3 लाख थी। And there were few Jewish cities also. और उस समय में कुछ जबूसी लोग भी वहां थे। And there were many Gentiles, Jewish cities was there. और
और उस देश के बीच में बहुत से अन्य जाति भी लोग थे। Praise to the holy name of God. परमेश्वर के पवित्र नाम की And तारीफ there हो। were many Gentiles also. और उस देश में बहुत अन्य जाति भी थे। Beloved child of God. परमेश्वर के प्यारे So बच्चों, we read this word is a prophetic word which was Ye- spoken by Isaiah. ये जो वचन है यशायाह के द्वारा एक भविष्यवाणी का वचन है। In book of Isaiah chapter 9 verse 1 and 2. यशायाह की पुस्तक 9 अध्याय का पहले दो In वचन। book of Isaiah chapter 9 verse 1 and 2. यशायाह की पुस्तक 9 अध्याय का पहला और दूसरा The वचन। people that walked, in second verse we read that the people that walk in darkness have seen a great light. हम वहां पढ़ते हैं कि जो लोग अंधकार के बीच में थे उन्होंने एक बड़ी ज्योति देखी। They that dwell in the land of the shadow of death, upon them had the light shined. और जो लोग उस अंधकार की छाया के बीच में उस देश में बैठे थे उनके ऊपर एक बड़ी ज्योति चमकी। In first verse we read that these are the people, these are the land of Zebulun and Naphtali. उस पहले वचन में हम देखते हैं कि वो जबलून और नप्ताली के लोगों की देश था। Beloved child of God. परमेश्वर के प्यारे So बच्चों, these are the people, or these are the tribe of Naphtali and Zebulun. यहाँ जो नप्ताली जबलून और नप्ताली के जाति के लोग रहते And थे even Gentiles was there in this land. और उस देश में अन्य जाति भी पाए जाते थे। This was a prophecy that the light has shined upon them. और उनके बारे में ये भविष्यवाणी की गई कि उनके ऊपर एक ज्योति चमकी And they saw a great light. और उन्होंने एक बड़ी ज्योति को देखा। These people were walking in darkness. ये लोग अंधकार में चल रहे थे। Not only that, they were in the shadow of death. उतना ही नहीं, वो लोग उस मृत्यु की छाया के बीच में थे। Praise be to the holy name of God. परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। That prophecy has been fulfilled by our Lord Jesus Christ. वो भविष्यवाणी का वचन हमारे यीशु मसीह के द्वारा पूरा किया गया। Jesus as a great light, he appeared before them. यीशु मसीह एक बड़ा ज्योति होके उनके सामने प्रकट हुआ। So this evening we are going to meditate upon these two things. आज शाम के समय इन दो बातों के बारे में हम ध्यान करेंगे। First of all, we see about the shadow of the death. पहला हम मृत्यु की छाया के बारे में देखेंगे। And secondly, people those who are walking or sitting in the darkness. और दूसरा उन लोगों के बारे में जो अंधकार के बीच में बैठे हुए या चलते हैं। Yeah, praise be to the holy name of God. परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। Beloved child of God. परमेश्वर के प्यारे बच्चों, In 16th verse we read. 16 वचन में हमने पढ़ा। In Gospel of Matthew chapter 4 in 16 we read. मत्ती 4 अध्याय का 16 वचन में हमने इस रीति से पढ़ा। The people which sat in darkness saw great light. जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। And to them which sat in the region and shadow of death, light is sprung up. और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर बड़ा ज्योति चमकी। Yes, beloved child of God. हाँ परमेश्वर के प्यारे बच्चों, What is the shadow of death? ये मृत्यु की छाया क्या है? Literally what this shadow shows. अक्षर रीति से ये छाया किसे दिखाती है? Literally shadow is an evidence of the living thing. ये जो अक्षर रीति से जो छाया है अस्तित्व में रहने वाली या असल चीजों की एक प्रमाण है। Shadow is an evidence of a real things. ये जो छाया है जो असली चीजें हैं उसका प्रमाण है। Sometimes looking at our shadow we fear also. कई बार उस छाया को देखते हुए हम भयभीत होते हैं। Shadow is frightening. वो जो छाया है ये भयभीत करने वाला है। When we see your shadow under the light, we can see your shadow in a shapeless. जब हम एक ज्योति में अपनी छाया को देखते हैं तो वो एक आकारहीन होकर दिखाई देती है। Praise be to the holy name of God. परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। We can see the small kids. आप छोटे बच्चों को जब देखते हो, Small kids when the kids of age of 3 to 4 years. जब आप छोटे बच्चे जो 3 और 4 उम्र के हैं, If they see the shadow, they cry loud. जब वो इस छाया को देखते हैं तो वो डर जाते हैं और रोते हैं। Because they don't have proper understanding about that shadow. क्योंकि उस छाया के लिए उनके पास एक ठीक समझ नहीं है। Because they don't have proper growth in them. क्योंकि उनके बीच में एक ठीक बढ़ोतरी नहीं है। They are not able to discern what is shadow and what is that. क्योंकि वो उस छाया को परख नहीं पाते और ये नहीं जान पाते कि वो क्या है। Yes, praise be to the holy name of God. परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ Yes, हो। beloved child of God. हाँ परमेश्वर के प्यारे All बच्चों, those who believe in Jesus. जितने लोग यीशु में विश्वास करते हैं, All those who accept Jesus as a savior in their life. जिन्होंने अपने जीवन में यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता स्वीकारा है, Beloved child of God.
परमेश्वर के प्यारे बच्चों, if we don't have a proper growth in our life, अगर हमारे जीवन में एक ठीक बढ़ोतरी नहीं है तो, if we don't have an understanding about our Lord Jesus Christ, अगर हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए हमें एक ठीक समझ नहीं है तो, if we don't have a spirit of discerning, अगर हमारे अंदर परखने की एक आत्मा नहीं है, fear will work in our life. हमारे जीवन में ये भय, ये डर काम करेगा, Shadow of death. और ये मृत्यु का छाया, Shadow is frightening. ये जो छाया है भयभीत या डराने वाली है। That's what Psalmist says. इसलिए भजन लिखने वाला कहता In है, Psalms 23 verse 4. इसलिए भजन संहिता 23 के 4 वचन में वो कहता है, Psalms 23 verse 4. भजन संहिता 23 का 4 वचन में What he says? वो क्या कहता है? Please read this verse. चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. Though I walk through the valley of the shadow of death, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, I will fear no evil. तो भी हानि से ना डरूंगा। So when we go through the shadow of death, जब आप उस मृत्यु की छाया में से होके जाते हो, there is a fear. वहां एक भय या डर दिखाई देता There है, is a fear of death. वहां मृत्यु का डर दिखता है। Praise be to the holy name of God. परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ That's हो। why Psalmist says, इसलिए भजन लिखने वाला कहता है, though I walk through the valley of the shadow of death, चाहे मैं घोर अंधकार से या मृत्यु की उस तराई में से होके जाऊं, I will fear no evil. मैं किसी भी हानि से ना डरूंगा, Because he says that the Lord is my shepherd. क्योंकि वो ये कहता है कि प्रभु मेरा चरवाहा है। If we know our Lord in a right way, अगर हम अपने परमेश्वर को ठीक रीति से या भलीभांति जानेंगे, if we know our Lord Jesus who is a light, अगर हमारे यीशु मसीह को जो ज्योति है उसे जानेंगे, in our life whatever shadows we see, we will never fear with that. हमारे जीवन में किसी रीति का भी छाया हम जो देखेंगे वो हमें भयभीत या नहीं डराएगी। In our life whatever shadows of death we go through, never we will fear for that. हमारे जीवन में किसी भी प्रकार के मृत्यु के छाया में से हम जाने से भी ना डरेंगे। Praise be to the holy name of God. परमेश्वर का पवित्र नाम की तारीफ Yes, हो। beloved child of God. हाँ परमेश्वर के प्यारे बच्चों, if any shadow is following you, अगर कोई भी छाया आपका पीछा करती है, if any shadow of death is following you, कोई भी मृत्यु की छाया आपका पीछा करती है तो, if any shadow of fear is following you, कोई भी मृत्यु छाया भय की छाया आपका पीछा करती है तो, beloved child of God, परमेश्वर के प्यारे बच्चों, like David, he should have a sure confidence saying that the Lord is my shepherd. इस बात का हमारे पास निश्चय होना जरूरी है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। Praise be to the holy name of God. परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। Beloved child of God, परमेश्वर के प्यारे बच्चों, fear comes from devil. ये जो भय है शैतान की ओर से आता है। Fear doesn't come from God. ये भय या डर परमेश्वर की ओर से नहीं The है। fear of death comes from devil. ये जो मृत्यु का भय है ये भी शैतान की ओर से आता है। When we see the life of Job, जब हम अय्यूब के जीवन को देखते हैं, what he says वो क्या कहता है? in book of Job chapter 10 verse 21 and 22, अय्यूब की किताब 10 अध्याय का 21 और 22 वचन जब हम पढ़ते हैं, in book of Job chapter 10 verse 21 and 22. अय्यूब की किताब 10 अध्याय का 20 और 21 और 22 वचन। Please read this. इससे पहले कि मैं वहां जाऊं जहां से फिर ना लौटूंगा, अर्थात अंधियारा और घोर अंधकार के देश में जहां अंधकार ही अंधकार है, और मृत्यु के अंधकार का देश जिसमें सब कुछ गड़बड़ है, और जहां प्रकाश भी ऐसा है जैसा अंधकार। Before I go whence I shall not return, even to the land of darkness and the shadow of death, a land of darkness as darkness itself, and of the shadow of death without any order, and where the light is as darkness. Praise be to the holy name of God. परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। Beloved child of God, परमेश्वर के प्यारे yeah, बच्चों, what Job is speaking over here. अय्यूब यहाँ इस रीति से कहता है, Before I go whence I shall not return, इससे पहले कि मैं वहां जाऊं जहां से फिर न लौटूंगा, even to the land of darkness and the shadow of death. अर्थात अंधियार और घोर अंधकार के देश में, He's saying that I will go to the place from whence I cannot return. वो ये कहता है कि मैं एक ऐसा स्थान में जाऊंगा जहां से मैं वापस नहीं लौट पाऊंगा। He's speaking about the grave. वो
कब्र के बारे में कहता है। Praise be to the holy name of God. परमेश्वर के पवित्र नाम की If तारीफ any हो। person after death, when he goes to the grave, never he can return back. एक व्यक्ति मरने के बाद जो वो कब्र में जाता है वापिस मुड़ के कभी नहीं आता। Beloved child of God. परमेश्वर के प्यारे बच्चों, And that land is filled with darkness. वो देश अंधकार से भरा है। The land is filled with वो darkness. देश अंधकार से भरा है। Even the light is like a darkness in that land. और उस देश में ज्योति भी अंधकार के तुल्य है। Yes, beloved child of God. हाँ परमेश्वर के प्यारे बच्चों, So Job is saying that this land is a shadow of death. इसलिए अय्यूब ये कहता है कि वो देश मृत्यु का या अंधकार की छाया है। Fear of death is like a shadow of death. मृत्यु का भय अंधकार की छाया के समान है। Yeah, praise be to the holy name of God. परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। Beloved child of God. परमेश्वर के प्यारे बच्चों, So Satan always he will try to make us frightened. शैतान हमेशा हमें डराने की कोशिश करता है। Always he wants to put us in a fear. हमेशा हमें उस भय में डर में डालने के लिए चाहता है। He want to fill our life with the darkness. वो हमारे जीवन को अंधकार से भरना चाहता है। He wants to lead our life in the fear of death. वो हमारे जीवन को उस मृत्यु के भय में चलाना चाहता है। Beloved child of God. परमेश्वर के प्यारे बच्चों, When we see the life of Job, जब हम अय्यूब के जीवन को देखते हैं, he had many disaster in his life. उसके जीवन में कई प्रकार के नुकसान हुए। Yeah, whenever he was going through disaster, जब कभी भी वो उस नुकसान में से गया, when his children was died, जब उसके बच्चे मर गए, one servant came and gave information message to Job saying that my lord, thy sons are died. एक दास ने उसके पास आके ऐसा संदेश दिया कि स्वामी तेरे बच्चे मर गए। When his beast was dead, when his cattle was dead, जब उसके cattle. जब उसके पशु मर गए, Yeah, one servant came and gave him a message saying that my lord, all the beast, cattle and died. एक दास ने इस प्रकार का संदेश दिया कि हे स्वामी तेरे सारे पशु मर गए। As the Job was hearing the message of every disaster in his life, जैसे जैसे अय्यूब इन सारे नुकसान के संदेशों को सुन रहा था, the fear was increasing in him. उसके अंदर भय डर बढ़ता जा रहा Yes, था। beloved child of God. हाँ परमेश्वर के प्यारे बच्चों, Even Satan will bring a wrong message to you. शैतान भी इसी प्रकार का गलत संदेश आपके अंदर लाएगा। All the disaster which you are going through in your life, आपके जीवन में किसी भी प्रकार के नुकसान से जब आप जाते होंगे, beloved child of God, परमेश्वर के प्यारे बच्चों, Satan will bring that wrong message to you and will put you in a fear. तब शैतान आपके अंदर एक गलत संदेश को लाएगा और उसके द्वारा डर आपके अंदर उत्पन्न करेगा। Because Satan wants to see you to be always in the shadow of death, in fear. क्योंकि शैतान आपको हमेशा उस डर में और उस मृत्यु की छाया के बीच में देखना चाहता है। Praise be to the holy name of God. परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ Yes, हो। beloved child of God. हाँ परमेश्वर के प्यारे बच्चों, What Satan will do? शैतान क्या करेगा? Satan wants publicity. शैतान को यहाँ एक प्रसिद्धि चाहिए। Satan will desire all his publicity. शैतान को यहाँ एक प्रसिद्धि या नाम चाहिए। To get a publicity, what it will do? उस नाम को पाने के लिए वो क्या करेगा? He will do wrong thing in your life. आपके जीवन में वो गलत कामों को करेगा। He will disturb your life. वो आपके जीवन में गड़बड़ी फैलाएगा। Praise to the holy name of God. परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। Yes, beloved child of God. हाँ परमेश्वर के प्यारे बच्चों, Even this evening in your life, आज शाम के समय भी आपके जीवन में if you are going through any fear, आप किसी भी प्रकार से भय के बीच में से जाते होंगे, if you are going through any disaster in your life, अगर आपके जीवन में किसी नुकसान से आप होके जा रहे हो, hearing the wrong message, let not your heart be troubled. उन सारे गलत संदेशों को सुनते हुए आपका हृदय भयभीत ना हो। Beloved child of God, परमेश्वर के प्यारे बच्चों, how we can get deliverance from this fear? इस भय से, इस डर से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं? Only through the love of God. यीशु मसीह के प्रेम के द्वारा, Only through the love of God. केवल यीशु मसीह के प्रेम के द्वारा। That's why word of God says, इसलिए परमेश्वर का वचन ये कहता है in 1 John chapter 4 verse 8, पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 8 वचन, 1 John chapter 4 verse 18, पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 18 वचन। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय से कष्ट होता है, और जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। There is no fear in love, but perfect love casteth out fear, because fear hath torment. He that feareth is not made perfect in love.
Yeah, praise to the holy name of God. परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। There is no fear in love, प्रेम में कोई भय नहीं, but perfect love casteth out fear. वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, Because fear hath tormented. क्योंकि भय से कष्ट होता है। He that feared is not made perfect in love. और जो भय करता है वे प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। Yeah, praise to the holy name of God. परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। Beloved child of God. परमेश्वर के प्यारे बच्चों, If we don't have a love of God, अगर आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं, so this fear will rule our life. तब ये भय हमारे जीवन में राज्य करेगा। The shadow of death will rule our life. तब मृत्यु की छाया हम में राज्य करेगी। Wherever you go, the shadow of death will follow आप you. जहां कहीं भी जाएंगे ये मृत्यु की छाया आपका पीछा करेगी। Beloved child of God, परमेश्वर के प्यारे बच्चों, perfect love casteth out fear. सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता Yes, है। beloved child of God. परमेश्वर के प्यारे बच्चों, To show this love of Jesus, He came to this earth. यीशु मसीह इस सिद्ध प्रेम को दिखाने के लिए संसार में आए। Yeah, to give this to show this perfect love, Jesus gave His life on the cross of Calvary. इस सिद्ध प्रेम को दिखाने के लिए यीशु मसीह ने अपना प्राण कलवी क्रूस के ऊपर दे दिया। Beloved child of God, परमेश्वर के प्यारे बच्चों, if you are going through any shadow of death, अगर आप उस मृत्यु की छाया में से जा रहे हो, if the shadow is threatening your life, अगर वो छाया आपके जीवन को भयभीत कर रही है, if तो the shadow of fear is ruling your life, अगर आपकी वो भय की छाया आपके जीवन में राज्य कर रही है, beloved तो child of God, परमेश्वर के प्यारे बच्चों, this evening you have to come to the cross of Jesus. आज शाम के समय आपको यीशु के क्रूस के निकट आना होगा। Look unto that Jesus. उस यीशु की ओर देखना होगा। Oh, look unto the love of Jesus. यीशु मसीह के प्रेम की ओर देखना होगा। That love is a pure love. वो प्रेम सिद्ध प्रेम है। Beloved child of God, परमेश्वर के प्यारे बच्चों, perfect love casteth out every fear. वो सिद्ध प्रेम हर एक प्रकार के भय को दूर करता है। Beloved child of God, परमेश्वर के प्यारे if बच्चों, you give room for the perfect love of Jesus, अगर आप उस सिद्ध परमेश्वर के सिद्ध प्रेम को जानोगे, yeah, you will be delivered from every fear. हर एक प्रकार के भय से आप छूट जाओगे। Yeah, praise to the holy name of God. परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। Beloved child of God. परमेश्वर के प्यारे So बच्चों, as we read in the key verse, जब जिस प्रकार हमने अपने मूल वचन में पढ़ा, all those who are in the shadow of death, they said their light has shined upon them. जितने लोग अंधकार में थे उन्होंने उनके ऊपर एक बड़ी ज्योति चमकी। All those who are in the shadow of death, light has shined upon them. जितने लोग उस मृत्यु की छाया में थे उनके ऊपर एक बड़ी ज्योति चमकी। Yeah, who is this light? ये ज्योति कौन है? This light is our Jesus. ये ज्योति हमारा यीशु Gospel है। of John, chapter 8, verse 12. यूहन्ना 8 अध्याय Gospel का of 11 John, वचन। chapter 8, verse 12. यूहन्ना 8 अध्याय का 12 वचन। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। Yeah. Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Yeah, praise to the holy name of God. परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. तब यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ। He that followeth me shall not walk in darkness, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में कभी ना चलेगा, but he shall have the light of life. परंतु वो जीवन की ज्योति पाएगा। Yeah, praise to the holy name of God. परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ Yeah, हो। what Jesus is speaking over here, यीशु मसीह यहाँ क्या कहते हैं? he says that I am the light of the world. वो कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूँ। He that followeth me जो मेरे पीछे हो लेता है shall not walk in darkness. वो अंधकार में ना चलेगा, He shall not walk in the shadow of death. वो उस मृत्यु के भय में ना चलेगा, He will not fear. वो ना डरेगा, Praise, he will be not frightened. वो भयभीत ना होगा। Praise to the holy name of God. परमेश्वर के पवित्र नाम की But तारीफ हो। that light shall give him a life. और वो ज्योति उसे जीवन देगा। Yes, beloved child of God. हाँ परमेश्वर के प्यारे The बच्चों, light is our Jesus. वो ज्योति हमारा यीशु है। The people, those who are sitting in the shadow of death, जो लोग उस मृत्यु के भय में या अंधकार में बैठे थे, the light has sprung upon them. उनके ऊपर ये बड़ी ज्योति चमकी। Yeah, yes, beloved child of God. हाँ परमेश्वर के प्यारे बच्चों, This light was before the foundation of the world. ये ज्योति जगत की उत्पत्ति से पहले ही This थी। light was before the creation of the earth. ये ज्योति जगत की सृष्टि से पहले This थी। light was before the sun, moon and stars. ये ज्योति
ज्योति सूरज चांद सितारों से पहले है। This light was before man was created. ये ज्योति मनुष्य की रचना से पहले भी थी। Yes, beloved child of God. परमेश्वर के प्यारे This is बच्चों, the true light. ये वो सच्ची या सत्य ज्योति है। This is a great light. ये वो महान ज्योति है। There is a life in this light. इस ज्योति में जीवन है। All those who follow this light, जितने लोग इस ज्योति का अनुकरण करते हैं, beloved child of God, परमेश्वर के प्यारे बच्चों, there is no darkness in them. उनमें कोई अंधकार नहीं, There will be no fear in them. उनमें कोई भय नहीं, There will be no shadow of death in them. उनके बीच में मृत्यु की कोई छाया नहीं। Yeah, praise to the holy name of God. परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। Why we fear? क्यों हम डरते हैं? When we go through the shadow of death, why we fear? जब हम इस मृत्यु की तराई में से या छाया में से जाते हैं तो हम क्यों Because, डरते हैं? because there is no proper growth. क्योंकि हम में एक ठीक बढ़ोतरी नहीं, There is no proper growth. हमारे अंदर ठीक बढ़ोतरी नहीं, There is no proper knowledge. हमारे अंदर ठीक समझ नहीं। That's why Saint Paul speaks to Corinthian church इसलिए संत पौलुस कोरिन्थियों की कलीसिया को लिखता है in 1 Corinthians chapter 4 verse 6. पहला कोरिन्थियों 4 अध्याय का 6 वचन। 1 Corinthians chapter 4 verse 6. पहला कोरिन्थियों 4 अध्याय का 6 वचन। Please read. हे भाइयों, मैंने इन बातों में तुम्हारे लिए अपनी और अपुल्लोस की चर्चा दृष्टांतों की रीति पर है, इसीलिए कि तुम हमारे द्वारा ये सीखो। Second Corinthians chapter 4 6. दूसरा कोरिन्थियों 4 अध्याय का 6 वचन। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। For God, who commanded the light to shine out of darkness, had shined in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Praise to the holy name of God. परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। Yes, Saint Paul is speaking with Corinthians saying that इसलिए संत पौलुस कोरिन्थियों की कलीसिया को लिखने के समय में ऐसा कहता है, to give the light of the knowledge परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति देने के लिए, of the glory of God in the face of Jesus Christ. महिमा की पहचान यीशु मसीह के चेहरे के प्रकाश। Praise to the holy name of God. परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। Beloved child of God, परमेश्वर के प्यारे बच्चों, we need the knowledge about this light. इस ज्योति का एक ठीक ज्ञान हमें होना है। We need the knowledge of this light. इस ज्योति के बारे में एक ठीक ज्ञान हमें होना चाहिए। Because we don't have proper knowledge about this light, that's why we fear looking unto this shadow. क्योंकि इस ज्योति के प्रति हमें एक ठीक ज्ञान नहीं होने के कारण जब हम अंधकार को देखते हैं तो हम डरते हैं। That's why we fear looking unto this shadow. इसलिए जब हम छाया को देखते हैं तब हम भयभीत होते हैं। Beloved child of God, परमेश्वर के प्यारे बच्चों, we need the knowledge of this light who is Jesus. इस ज्योति की एक ठीक समझ होना जरूरी है जो यीशु मसीह है। In Gospel of John, यूहन्ना सुसमाचार chapter 3 verse 19 and 20, जब हम तीसरे अध्याय का 19 और 20 वचन पढ़ते हैं, what we read over there, उस जगह में हम क्या पढ़ते हैं? please read this verse. दया करके उस वचन को पढ़ें। और दंड की आज्ञा का कारण ये है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। And this is the condemnation, that light is come into the world, and men love darkness rather than light, because their deeds were evil. For everyone that doeth evil hateth the light, neither cometh to the light, lest his deeds should be reproved. Praise to the holy name of God. परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। What John is saying over here, यहाँ यूहन्ना क्या कहता है? many people they love darkness rather than light. बहुत से लोग अंधकार से प्रेम करते हैं। That's why in these days many people they love darkness rather than light. इन दिनों में बहुत से लोग ज्योति को छोड़ के अंधकार को प्रिय जानते हैं। Because their deeds were evil. क्योंकि उनके काम बुरे हैं। If you go on doing evil, you will love the darkness rather than the light. आप जितना अधिक बुराई करेंगे, आप उतना अधिक उस अंधकार को प्रिय जानेंगे। In verse 20 we read, 20 वचन में हम पढ़ते For हैं, everyone that doeth the evil hateth the
the light. क्योंकि जो कोई बुराई करता है उस ज्योति से बैर रखता है। Praise be to the holy name of God. परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। Beloved child of God. परमेश्वर के प्यारे Why बच्चों, you hate this light? क्यों आप इस ज्योति को घृणा करते हैं? Why you hate this Jesus? क्यों आप यीशु मसीह को घृणा करते हैं? Why you won't allow the Jesus to work in your life? क्यों आपके जीवन में आप यीशु मसीह को अनुमति नहीं Why देते? you are not allowing this light to work in you? क्यों आप इस ज्योति को आपके जीवन में काम करने की अनुमति आप Why नहीं you are not देते? allowing this light to shine in your life? क्यों आप इस ज्योति को अपने जीवन में चमकने के लिए नहीं देते? Because you love the works of darkness. क्योंकि आप उस अंधकार के कामों को प्रिय जानते हो। Because you love this darkness. क्योंकि आप इस अंधकार को प्रेम करते हो। Praise be to the holy name of God. परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ In हो। verse 21 what we read, 21 वचन में हम क्या but पढ़ते हैं? he that doeth truth cometh to the light. परंतु जो सच्चाई पर चलता है इस ज्योति के निकट आता है। But he that doeth truth cometh to the light. परंतु जो सच्चाई पर चलता है वो इस ज्योति के निकट आता है। Yes, beloved child of God. हाँ परमेश्वर के प्यारे This बच्चों, evening God is speaking with you saying that walk in truth. आज शाम का समय इस वचन के द्वारा प्रभु आपसे बात कर रहा है कि आप ज्योति में चलें, Yeah, walk in light. आप ज्योति में चलें, Love truth. उस सच्चाई को प्रेम Love करें, this light. इस ज्योति को प्रेम करें, Don't love उस darkness. अंधकार को प्रेम ना करें, Don't love false doctrines. उस गलत उपदेश को प्रेम ना करें, Don't love false teachings. आप उस गलत शिक्षा को प्रेम ना करें। Beloved child of God. परमेश्वर के प्यारे बच्चों, Jesus is the truth. यीशु मसीह वो सत्य है, Jesus is the light. यीशु मसीह वो ज्योति है। Beloved child of परमेश्वर God. के प्यारे If बच्चों, you love this truth, अगर आप इस सच्चाई को प्रेम करोगे this light will shine upon you. तब ये ज्योति आपके ऊपर चमकेगी, This light will change your life. तब ये ज्योति आपके जीवन को बदल देगी, This light will deliver you from every shadow of death. तब ये ज्योति हर एक प्रकार के उस मृत्यु की छाया से आपको छुड़ाएगी, This light will deliver you from every darkness. तब हर एक प्रकार के अंधकार से ज्योति आपको छुड़ाएगी, This light will deliver you from every fear. तब ये ज्योति हर एक प्रकार के डर से आपको छुड़ाएगी, This light will help you to grow in the love of Jesus. तब ये ज्योति आपको यीशु मसीह के प्रेम में बढ़ने के लिए सहायता करेगी। Yeah, praise to the holy name of God. परमेश्वर के पवित्र नाम की Yes, तारीफ हो। beloved child of हाँ God. परमेश्वर के प्यारे बच्चों, Jesus is a true great light. यीशु मसीह वो सत्य और महान ज्योति है। Jesus is a true great light. यीशु मसीह वो महान सत्य ज्योति है। Praise to the holy name of God. परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। Beloved child of God. परमेश्वर के प्यारे So बच्चों, that's why Jesus is preaching saying that repent. इसलिए यीशु मसीह ये प्रचार करते हैं कि आप मन फिराओ, Repent because the kingdom of God is at hand. मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। Repent because the kingdom of God is at hand. मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। Beloved child of God, परमेश्वर के प्यारे बच्चों, if you are walking through the darkness, अगर आप अंधकार में से होके जा रहे हो, if you are loving the works of darkness, अगर आप अंधकार के कामों को प्रिय जानते हो, if you are loving darkness, अगर आप अंधकार को प्रिय जानते हो, you have to repent. आपको मन फिराना होगा, You have to repent. आपको मन फिराना होगा। Praise to the holy name of God. परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। Beloved child of God. परमेश्वर के प्यारे बच्चों, Secondly, दूसरा we read that we read the people those who want darkness. हम उन लोगों के बारे में पढ़ते हैं जो अंधकार में थे, People those who were in darkness. उन लोगों के बारे में पढ़ते हैं जो अंधकार में थे। What is meant by darkness? ये अंधकार का अर्थ क्या है? Darkness means the absence of light. अंधकार का अर्थ है जहां ज्योति नहीं है। Yeah, darkness means the absence of light. जहां ज्योति की कमी है या जहां ज्योति नहीं वो अंधकार है। Beloved child of God. परमेश्वर के प्यारे बच्चों, But light is not like that. Light is a thing. Light is not like that. Light is a thing. लेकिन ज्योति ऐसा नहीं है, ज्योति एक चीज है। We can measure the light. हम इस ज्योति को माप सकते हैं, We can feel the light. हम इस ज्योति को महसूस कर सकते हैं, We can touch the light. इस ज्योति को आप छू सकते हैं। Not only that, not only we can measure the light. उतना ही नहीं, हम इस ज्योति को माप भी सकते We हैं। can measure the distance of the light. उस ज्योति के उस
दूरी. दूरी को माप सकते We हैं. can measure the weight of the watts of the light. हम उस ज्योति के वॉट्स को माप सकते हैं. That's why we say that the traveling of the light. इसलिए इस ज्योति के बारे में हम पढ़ते हैं कि वो दूरी तय करती है. But darkness is not like that, but it is absence of something. लेकिन अंधकार ऐसा नहीं है, वो किसी बात की कमी है. Beloved child of God, परमेश्वर के प्यारे बच्चों, I want to speak about this darkness in two ways. मैं इस अंधकार के विषय में दो रीति से बताना चाहूंगा. First of all, we fall in darkness. पहला, हम अंधकार में गिर जाते या पड़ जाते. When man falls in darkness, God shines upon us like a light. जब एक मनुष्य अंधकार में गिर जाता है, तब परमेश्वर ज्योति होकर उसके ऊपर चमकता है. When man falls in darkness, Jesus shines like a light upon them. जब मनुष्य जो अंधकार में गिर जाता है, तब यीशु मसीह ज्योति होकर उस मनुष्य के ऊपर चमकता है. Beloved child of God, परमेश्वर के प्यारे बच्चों, this is the spiritual darkness in our life. ये आत्मिक अंधकार जो हमारे जीवन में है. Because of the lack of time, I will just give the references. समय की कमी के कारण मैं केवल आपको वचनों को बताऊंगा. Because of sin, that is because of sin, this darkness comes in us. पाप के कारण ये अंधकार हमारे अंदर आता है. Because of sin, the death takes place in our life. पाप के कारण ये मृत्यु हमारे अंदर घटती है. In book of Romans chapter 6 verse 23 we read. रोमियो की किताब 6 अध्याय का 23 वचन में हम पढ़ते हैं. In book of James chapter 2 verse 17 and 20. याकूब की किताब 2 अध्याय का 17 और 18 वचन. Those who don't have faith, they are dead in faith. वचन कहता है कि जिनके अंदर विश्वास नहीं, उनका विश्वास मरा हुआ है. In 1 Timothy 5:6 we read that she that liveth in pleasure, she is dead. पहला तिमोथी 5 अध्याय का 6 वचन कहता है जो सुख विलास से जीते हैं वो मरे हुए हैं. In Psalms 115 verse 17 and 18 we read that those who won't praise God, they are dead. वचन संहिता 115 का 17 और 18 वचन इस रीति से कहता है कि जो परमेश्वर की स्तुति नहीं करते वो मरे हुए हैं. In James chapter 2 verse 26 we read that those who are without spirit they are dead. याकूब 2 अध्याय का 26 वचन इस रीति से कहता है कि जो आत्मा के बिना है वो भी मरे हुए हैं. All these death experience are compared to darkness. ये सारे मृत्यु के अनुभव अंधकार के साथ तुलना किए गए हैं. Beloved child of God, परमेश्वर के प्यारे बच्चों, if we are in this darkness, अगर हम इस अंधकार में हैं, if we are in this dead experience, अगर हम इस मृत्यु के अनुभवों के बीच में हैं, we have to leave all these works of darkness. हमें अंधकार के इन सारे कामों को छोड़ देना है. We have to put on the armors of light. हमें उस ज्योति के हथियारों को पहन लेना है. Praise be to the holy name of God. परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो. Yes, beloved child of God. हाँ परमेश्वर के प्यारे बच्चों, when we put on the armors of light, जब हम ज्योति के हथियारों को पहन लेंगे, we can overcome this death and we can go into victory. तब हम इस मृत्यु के ऊपर जय पा सकते हैं और उस जय में प्रवेश कर सकते हैं. We can see the glory of this light. तब हम इस ज्योति की महिमा को देख पाएंगे. Praise be to the holy name of God. परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो. That's why Saint Paul says, इसलिए संत पौलुस कहता है in 1 Corinthians chapter 6 verse 13 and 14. पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय का 13 और 14 वचन. Please read that verse. दया करके उस वचन को पढ़ें. 1 Corinthians chapter 6 verse 13 and 14. पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय का 13 और 14 वचन. भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नाश करेगा. परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं, वरन प्रभु के लिए, और प्रभु देह के लिए है. और What come in the light hath with the darkness? 2 Corinthians 6 chapter. अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति. Now for a recompense in the same I speak as unto my children, be ye also enlarged, be ye not unequally दूसरा yoked. कुरिन्थियों 6 अध्याय का 14 वचन. Be ye not unequally yoked together with unbelievers, for what fellowship hath righteousness with unrighteousness, and what communion hath light with darkness? What communion hath light with darkness? ज्योति का अंधकार के साथ क्या मेल. Here we read that the children of light and children of darkness. यहाँ हम अंधकार की ज्योति, अंधकार और ज्योति की संतान के बारे में पढ़ते हैं. Saint Paul is speaking about with this Corinthian church saying that what communion hath the light with darkness?
संत पौलुस कोरिन्थियों की कलीसिया को लिखने के समय कहता है कि ज्योति और अंधकार की क्या संगति या क्या Yeah, beloved मेल। child of God, परमेश्वर के प्यारे बच्चों, we should not have any communion or relation with the darkness. हमें उस अंधकार के साथ कोई भी संगति या किसी भी प्रकार का मेल नहीं होना Because we चाहिए, are the children of light. क्योंकि हम ज्योति की संतान हैं, Because our Jesus is a true light. क्योंकि हमारा यीशु मसीह सत्य ज्योति है। Through Jesus we are putting on the armors of light. उस यीशु मसीह के द्वारा हम उस ज्योति के हथियारों को पहन लेते हैं। That's why in our life we should not give any room for darkness. इसलिए हमारे जीवन में किसी भी प्रकार से इस अंधकार को जगह नहीं देनी And we चाहिए। should not have any communion or relation, fellowship with the darkness. इसलिए इस अंधकार के साथ किसी भी प्रकार की संगति, सहभागिता या मेल नहीं होना चाहिए। Yeah, praise for the holy name of God. परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। Beloved child of God. परमेश्वर के प्यारे So बच्चों, when we are falling in darkness, जब हम अंधकार में गिर जाते हैं, when we are leading the life of darkness, जब हम अंधकार के जीवन को व्यतीत करते हैं, Jesus shined upon them. Jesus shined upon them as a light. तब यीशु मसीह ज्योति होकर उन पर चमकता है। Spirit of God is shining upon them as a light. परमेश्वर का आत्मा ज्योति होकर उन पर चमकता है। Praise to the holy name of God. परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। Beloved child of God. परमेश्वर के प्यारे बच्चों, We read in Genesis, हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं, Spirit of God moved upon the face of the earth. हम इस रीति से पढ़ते हैं कि परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता The था। earth was filled with darkness. वो पृथ्वी पूरी अंधकार से भरी थी। The earth was filled with darkness. वो पूरी भूमि या पृथ्वी अंधकार से भरी थी। Earth was void. वो जो भूमि थी या पृथ्वी थी वो बेडोल थी। Earth was without form. वो जो भूमि थी वो बिना आकार के थी। Praise to the holy name of God. परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। When one child of God it falls in darkness, जब एक परमेश्वर का बच्चा अंधकार में गिर जाता है, his life will be empty. उसका जीवन खाली हो His जाता है, life will be void. उसका जीवन बेडोल हो जाता है His life will be without form. और उसका जीवन आकारहीन हो जाता है। Beloved child of God, परमेश्वर के प्यारे if बच्चों, you won't give up the works of darkness, अगर हम अंधकार के कामों को नहीं छोड़ेंगे, beloved child of our life will be empty. तब परमेश्वर के प्यारे बच्चों हमारा जीवन शून्य हो जाएगा। But this evening God is speaking with us. आज शाम के समय प्रभु हमसे बातें कर रहे हैं। That is, He will make His light to shine upon us. तब वो हमारे जीवन अपनी ज्योति को हमारे पर चमकाएगा। The Spirit of God was moving upon that water. परमेश्वर का आत्मा उस जल के ऊपर मंडलाता था। The Spirit of God was moving in the darkness. परमेश्वर का आत्मा उस अंधकार के ऊपर मंडलाता था। Yes, beloved child of हाँ God. परमेश्वर के प्यारे बच्चों, Yeah, this evening Spirit of God wants to move in your life. आज शाम के समय प्रभु का आत्मा आपके जीवन में चलते फिरते हुए रहना चाहता Whose है। life is filled with darkness. Whose life is filled with darkness. आपका जिनका जीवन अंधकार से भरा है, Whose life is empty. जिनका जीवन शून्य या Whose खाली life है, is void. जिनका जीवन बेडोल है। Yes, beloved child of हाँ God. परमेश्वर के प्यारे When बच्चों, Spirit of God moves in you, जब परमेश्वर का आत्मा में आपके अंदर मंडलाएगा, when the Spirit of God walks in जब you, परमेश्वर का आत्मा आपके बीच में चला फिरेगा, when this light travels in you, जब परमेश्वर का ज्योति आपके अंदर काम करेगा, yes, every darkness will flee away from your life. तब आपके जीवन से हर एक प्रकार का अंधकार दूर भाग जाएगा। Let darkness flee away. वो अंधकार आपसे दूर भागने दे। When this light travels in your life, जब ये जीवन आपके अंदर आपके जीवन में जब ये ज्योति आपके जीवन में when the आएगी, light shines upon you, जब ये ज्योति आपके ऊपर चमकेगी, you will be delivered from darkness. तब आप अंधकार से छुड़ाए Yeah, जाओगे। praise to the holy name of God. परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। Beloved child of God, परमेश्वर के प्यारे बच्चों, Abraham, while he was giving sacrifice, जब अब्राहम बलि चढ़ा रहे था, while he was giving sacrifice, जब वो बलि चढ़ा रहा था, if the deep darkness came upon him, तब उसके ऊपर एक अंधकार, घोर अंधकार आया। what is the reason of that? उसका कारण क्या था? He was not offering sacrifice in a right way. क्योंकि वो बलि ठीक रीति से नहीं चढ़ा रहा था। If we are not able to offer the sacrifice in a right way, deep darkness will fall upon us. और अगर आप भी ठीक रीति से परमेश्वर के लिए बलि नहीं चढ़ाते तो एक घोर अंधकार आपके ऊपर भी आएगा। Praise to the holy name of God. परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। Beloved child of God, we should give sacrifice in a right way to God. परमेश्वर के प्यारे बच्चों, हम ठीक रीति से परमेश्वर के लिए बलि को चढ़ाना Whatever चाहिए। sacrifice we are giving to God, we should give it in a right way. जो कोई भी बलिदान हम परमेश्वर के लिए चढ़ाते हैं, हमें ठीक रीति से चढ़ाना होगा। And secondly, दूसरा, when God wants to prepare us for light,
जब परमेश्वर हमें उस ज्योति के लिए तैयार करता है, He will put us into darkness. तब हमें अंधकार में डालता है। He will put us into darkness. तब वो हमें अंधकार में डालता है। When God wants to prepare us for light, जब परमेश्वर हमें ज्योति के लिए तैयार करना चाहता है, He will put us into तब darkness. वो हमें अंधकार में डालेगा। When we see in the book of Acts chapter 9, जब हम प्रेरितों के काम 9 अध्याय verse 3 and 4, 3 और 4 वचन please पढ़ते हैं। read this verse. दया करके उस वचन को पढ़ें। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। And as he journeyed, he came near Damascus, and suddenly there shined round about him a light from heaven, and he fell to the earth and heard a voice saying unto him, Saul, Saul, why persecutest thou me? Light fell upon him from heaven. स्वर्ग से उसके ऊपर एक ज्योति चमकी। And he was blind for 3 days. 3 दिनों तक वो अंधा हो गया। He was in darkness for 3 days. 3 दिनों तक वो अंधकार में था। Beloved child of God, परमेश्वर के प्यारे बच्चों, when God wants to prepare us for light, जब परमेश्वर हमें उस ज्योति के लिए तैयार करता है, He will put us in darkness. तब वो हमें अंधकार में डालता है। Saint Paul, he was in darkness for 3 days. संत पौलुस 3 दिन तक उस अंधकार में था। He was a chosen. God made him a chosen. God made him a chosen vessel. परमेश्वर ने उसे एक चुना हुआ पात्र बनाया। God is giving testimony about Saint Paul, saying that now he is praying. अब परमेश्वर संत पौलुस के बारे में ये गवाही देता है कि वो प्रार्थना कर रहा वो प्रार्थना कर रहा है। Praise to the holy name of God. परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ Yes, हो। beloved child of God. हाँ परमेश्वर के प्यारे When बच्चों, God puts us in darkness, जब परमेश्वर हमें अंधकार में डालता है, He transforms our life. तब वो हमारे जीवन को He परिवर्तन changes करता है। our life. तब हमारे जीवन को बदलता है। He designs our life. तब वो हमारे जीवन को रचता है। When God is preparing us for light, जब परमेश्वर हमें उस ज्योति के लिए तैयार करता है, He will transform our life. तब वो हमारे जीवन को He रूपांतर will करता put है। us in darkness. वो हमें अंधकार में डालता है। In Old Testament, we can see the life of Joseph. जब हम पुराने नियम में यूसुफ के जीवन को देखते हैं, Joseph was put in darkness in dungeon. यूसुफ उस अंधकार में, उस बंदीगृह में डाला गया। In dungeon, he was framed. He was designed to be a ruler. उस बंदीगृह के बीच में अधिकारी होने के लिए परमेश्वर ने उसे उसके अंदर रचना की। Yes, in being in a prison in darkness, he received the gifts of God. उस बंदीगृह के बीच में उसने परमेश्वर के वरदानों को पाया। Yes, beloved child of God. हाँ परमेश्वर के प्यारे बच्चों, When God is preparing you for light, जब परमेश्वर हमें उस ज्योति के लिए तैयार करता है, He will lead you in darkness. तब आपको वो अंधकार में ले जाता है। He will put you in तब वो darkness. आपको अंधकार में डालता है। If you are going through darkness, जब आप अंधकार में होके जाते हो, remember God is preparing you for light. तभी आप ये समझ ले कि परमेश्वर मुझे ज्योति के लिए तैयार कर रहा God है। is preparing you for the eternal glorious light. परमेश्वर उस नित्य महिमा के लिए जो ज्योति के स्वरूप है उसके लिए आपको तैयार कर रहा है। Praise to the holy name of God. परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ In हो। Philippians chapter 2 verse 15 and 16, what we read, फिलिपियों 2 अध्याय का 15 और 16 वचन में हम क्या पढ़ते हैं? please read this verse. दया करके उस वचन को पढ़ें। Only in हाँ। English. That ye may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the world, holding forth the word of life, that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain, neither labored in vain. Yeah, praise to the holy name of God. परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। Yeah, what we are reading, हम यहाँ क्या पढ़ते हैं? and among whom ye shine as a light in the world, जिनके बीच में आप ज्योति के समान होकर चमकते हो, holding for the word of life, उस जीवन के वचन को लिए हुए until the day of Christ. यीशु मसीह के दिन तक। Yes, beloved child of God. हाँ परमेश्वर के प्यारे बच्चों, Until the day of the law, until the day of the Lord, परमेश्वर के दिन तक we should be found in this light, हम इस ज्योति में पाए जाना holding चाहिए। the truth. सच्चाई को थामे हुए We should live in this light इस ज्योति में हम जीवन बिताना until चाहिए the coming of the Lord. यीशु मसीह के आगमन तक। Praise to the holy name of God. परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ The हो। Lord should help us. Hallelujah. परमेश्वर हमारी मदद करना And Lord चाहिए। should help us to lead a life in this light इस ज्योति में अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए प्रभु हमारी मदद करना चाहिए until the day of the Lord. परमेश्वर के आमद के दिन तक या उसके दिन तक। Praise the Lord. May God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करे। चाहे अंधेरे में चली, जहाँ ज्योति की आशा न रहे, यीशु को ताकती रही,
आंसू जबान देगा। वो हमारी दुख मिटा के आंसू जबान देगा। वो हमारी दुख मिटा के आंसू जबान देगा। We praise you, we praise you, we praise you, we praise you. Thank you, Lord.